नमस्कार। बच्चन जी की पंक्तियाँ याद आ रही हैं। उन्होंने एक जगह कहा है, मेरे आंगन भीड़ लगी मैं किससे कितना प्यार करूं। सो इस समय जो आप यहाँ पर हैं, काश मेरी ये दो छोटी छोटी बाहें आखिरी व्यक्ति तक पहुँचती और सबको मैं गले लगा सकती। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सच इमेजिन I can see so many faces. I don't know, I'm meeting them after centuries. I'm very happy. I'm humble, touched. Thank you very much. Father Terry is here. He was there. Where there is Father Gordon, Father Roy. These people have somewhere, I feel, these Jesuits, that tradition. इन लोगों ने जो हमें एक तरह से जाने अनजाने जो संस्कार दिए हैं. I'm so thankful to you people, Father. Some colleagues are also sitting here. I know they had a long day. Some of them had 8 o'clock supervisions. They have hundreds of papers to correct. In spite of that, they have come. I'm thankful to them. My family members, Amin Sani ji, like I think 4 generations Hindustan ki aapko sun ke badi hui hain. And getting your blessings on this day, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. My family members are sitting here. My sisters are here, Divya and Pratibha. My niece Sonal is sitting here. My husband Ramakant is here. Oh, yes. No, let me tell everyone publicly, let me accept it. See, whatever little I have done in this college and outside this college, it's all because of my upbringing, my sanskar, what my parents, उन लोगों ने जो मुझे संस्कार दिए. But शादी के बाद, if I could continue that, so publicly I am saying thank you for giving me that freedom and that space. Oh, giving me that space, you know. Otherwise, in our society, even today, it's not that easy. It's not that easy. Both my kids are sitting here. प्रबुद्ध कहाँ बैठा है? वहाँ है. यशस्विनी, मेरी 2 आँखें, मेरी जान, मेरा जहान, मेरा सब कुछ ये 2 हैं. एंड लेट मी से पब्लिकली सॉरी टुडे. इन दोनों से थोड़ा समय चुरा कर मैंने अपने सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज और अपने स्टूडेंट्स को दिया है. सो सॉरी फॉर दैट. हाउ कैन आई फॉरगेट यश, हमारी ताकत का ख़जाना. थैंक यू बच्चा. सो एट प्रेजेंट इन दिस कैंपस, Father Peso and Father Errol, I respect you a lot, Father. You don't know how much I respect you and Father Peso. Thank you very much. These people have helped me. जहाँ मुझे उम्मीद भी नहीं रहती कि मुझे कोई इस कॉलेज में मदद मेरी कर सकता है, वहाँ पर Father Errol और Father Peso ने मदद की है. और Father Roy के साथ मेरा संबंध कुछ अलग तरह का है. लेकिन वो I don't know. Thank you, Roy, for being there always. Thank you for my this year's Hindi Sahitya Sangeet Nat Academy committee, Harsh and company, Priya, Shivani and Martin for organizing this, Kadam, all my these, Karmachari, Bandhu, Chandan, सारे लोग, एगी को भी धन्यवाद. सबसे पहले तो ये everybody is asking me the day I announced it, why voluntary retirement, why voluntary retirement? Do you have some medical problem? Do you have some problem with college? With God's grace, ऐसा कुछ नहीं है. In fact, चूँकि कॉलेज के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूँकि अल्लाह ताला की मेहरबानी से तन मन धन सब कुछ अच्छा है. So I remember when I had stepped down last year from vice principal's post, everyone said, why you did this, why you did this? And I went to Father Terry and I shared with him that, Father, this is what I, and he said, Asha, I'm so happy you did this. You have stepped down gracefully. Father, I'm trying once again to do that. So I need your blessings and I need your best wishes. वॉलंटरी रिटायरमेंट सिर्फ इसलिए कि अब ज़्यादा दौड़ना नहीं चाहती. जैसा ख्याति ने कहा 8 बजे के लेक्चर के लिए, अब थोड़ा फुर्सत में जीना है. बहुत कुछ बाकी है अभी करने के लिए, वो करना चाहती हूँ. एंड वन थिंग व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम जेजुइट्स गिविंग बैक टू सोसाइटी,
आई एम प्लानिंग, मेरे घर के आसपास जो म्यूनिसिपल स्कूल्स हैं वहाँ मैंने अपने आप को 5 साल का एक प्लान बना के रखा है अपने लिए. सो आई विल बी टीचिंग दोज 5th-6th स्टैंडर्ड किड्स एंड आई वॉन्ट टू सी, थैंक यू, आई वॉन्ट टू सी कि मैं कहीं पर कुछ बेहतर उनकी ज़िंदगी में कर पा रही हूँ या नहीं. बाकी 35 साल की ये ज़िंदगी जो इस सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में गुजारी है, यानी पहली बार मैं सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में कब आई मुझे याद भी नहीं है. हम लोग पिताजी की उंगली पकड़ के यहाँ आया करते थे, कभी साहित्य मंडल के कार्यक्रम के लिए, कभी संगीत मंडल के कार्यक्रम के लिए, कभी कॉलेज डे के लिए. फर्स्ट क्वाड्रेंगल में हुआ करता था 3 दिसंबर को. तो बहुत बार मैं आती रही. फिर देन आई यहाँ स्टूडेंट यहाँ पढ़ती रही. आई जॉइन जूनियर कॉलेज, senior college, vice principal. After that, people started offering me known colleges, including St. Xavier's College. Principal की post ली जाए, but I had my own कुछ plans थे, so I couldn't accept it. पिछले साल ही मुझे जाना था, पर फिर 1 साल और कर लिया. So कहना ये है कि St. Xavier's College ने मुझे बनाया है, मुझे संवारा है, तराशा है. जितना कुछ मैंने इस कॉलेज से पाया है, मुझे कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है कि आई वॉज जुमा 22 साल की मैं थी व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग इन दिस कॉलेज. एंड हाउ इट दैट संगीत मंडल, इट यूज्ड टू बी मोस्ट नोटोरियस एसोसिएशन ऑफ दिस कॉलेज. वो कितने सालों से बैन पड़ा हुआ था और वो एसोसिएशन प्रिंसिपल ने मुझे सौंप दिया. सो लाइक व्हाट एगी सेड, all these principals, Father Mesquita, Father Jodas, Father Simon, Father Fraser, including Eggy, I had my difference of opinion. Sometimes I used to feel like I'm becoming like a complaint box. Every time going and telling them why it's happening this way. With Father Arun and Father Roy, I used to have long discussions. All this is not complaints, I'll say, but that attachment with this institution, कि यहाँ कुछ गलत नहीं होना चाहिए. That was the reason. And imagine आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है. All these kids are saying कि like a mother I am. When I joined this college, security people used to stop me. ID card किधर है? ID card किधर है? And my students used to tell me, hey, the security वाले को, hey, she's our professor. And then, okay madam. I used to try my level best. I used to wear only saris. माँ सुबह सुबह परांदे की एक लंबी चोटी मुझे बना के देती थी. आई यूज टू वेयर हाई हील्स की क्लासरूम में मैं थोड़ा दिखाई दूँ. आई यूज टू बी लाइक यशस्विनी, दुबली पतली सी. और तो फिर कि थोड़ा वो जामा पहना जाए प्रोफेसर वाला. तो शुरुआत वहाँ से हुई थी. बहुत लोग नहीं हैं, आई कैन शेयर विद यू पीपल. शुरुआत तो यहाँ भी हुई थी कि बट इट विल रिमेन इन दिस हॉल ओनली. हाँ, यू पीपल विल नॉट गो एंड शेयर विद. Like, you know, in the classroom in the beginning, boys writing love letters. And, like, you know, and imagine my father is teaching here. Oh, unme se koi yahan nahi hai, Ramakant ji. I'll share one incident with you people. It was room number 20C. I think 11th arts या 12th arts का class रहा होगा. पिताजी has taught me one thing. पिताजी हम सबसे कहते हैं, see, classroom में जाना है, 2 things you should remember. A, never ever lose your temper in the classroom. Second, पीछे पीछे सारे महानुभाव बैठे होते हैं, है ना, उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए. But that happened कि आगे आगे वो सारे लड़के, एंड इमेजिन अल्लाह ताला ने 5 फीट भी हाइट नहीं दी, इसलिए राइज़र लगाना पड़ता है. और वो लंबे चौड़े लड़के आकर बैठे हुए. ठीक है, लेक्चर चल रहा था बड़े हिम्मत से. One day after lecture, usually this is what happens. People come, the students, they come and they share with you, ma'am, this was good, this, that. क्या मेरे उस क्लासरूम में तब भी राइज़र नहीं था. 20C में अभी भी नहीं. अब है क्या राइज़र 20C में? अच्छा, अब है. ओके, सो राइज़र नहीं हुआ करता था. सो दीज 4-5 वो लड़के आकर मेरे टेबल के आगे खड़े हो गए. और एक लड़के ने आकर एक पर्ची मुझे दी. मैम, दिस इज़ लव लेटर फॉर यू.
मेरे कान में धुआं धुआं, हाथों में ठंडा पसीना। मुझे उस दिन पता चला पसीने छूटने मुहावरे का अर्थ क्या होता है। और बट समवेयर यू नो ऊपर वाला मेहरबान होता है, दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड। आई जस्ट विद बिल्कुल हिम्मत से मैंने वो कागज़ खोला। अंग्रेज़ी में कुछ क्या लिखा था मुझे बिल्कुल पता नहीं, पढ़ा कहाँ जा रहा था डर के मारे। सो समथिंग वॉज रिटन इन इंग्लिश, सो आई टोल्ड हिम, वेल आई टीच हिंदी, राइट इट इन हिंदी। मनास, कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। नेक्स्ट एंड लाइक यू नो दे लेफ्ट ऑल दोज बॉयज, पता नहीं वो क्या बोल रहे थे, सब चले गए। एंड आशा वॉज, मैं अपनी पीठ खुद थपथपा रही थी, वाह क्या जवाब दिया है हिम्मत से। दूसरे दिन फिर लेक्चर में गई तो पहले दिन वो जो 5 लड़के लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट बेंच में बैठे हुए थे, आज वो सबके सब सेंटर वाली रो में आकर बैठ गए। खैर लेक्चर तो लेना था, मैंने लिया। और फॉर माई सरप्राइज 5 लड़के फिर आए। ये लड़का फिर आया, ही सेड मैम आई हैव रिटन लव लेटर नाउ इन हिंदी। ओह गॉड, अब क्या करूं? फिर वही पता नहीं कहाँ से ये बुद्धि आई मुझ में। मैंने अभी भी आज भी कसम से कह रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है क्या लिखा था। मैंने रेड पेन लिया, सारे स्पेलिंग सुधार दिए, है ना। एंड वेल ये रहस्य पहली बार सामने आ रहा है, मैंने कभी किसी से कहा नहीं है। आई थिंक ओनली प्रतिभा नोज, तुमसे कहा था नहीं, ओके सो नो वन नोज। सो आई गिव इट टू हिम, री राइट इट। सो उसके बाद 2 दिन लेक्चर नहीं था मेरा। नेक्स्ट टाइम जब मैं पहुंची, ऊपर वाली की मेहरबानी से उसने री राइट नहीं किया। और वो किस्सा वही थी। एक इस तरह के बहुत किस्से होते रहे। और उसके बाद आई हैव रीच्ड दिस स्टेज 10-12 years back when सारे स्टूडेंट्स खंडाला की बात कर रहे हैं। वी गो फॉर खंडाला विला हिंदी सेमिनार के लिए, वेयर माई स्टूडेंट्स दे प्रेजेंट देयर पेपर्स। एंड हम लाइक थर्सडे थोड़े से, ओ सौरभ, गुड, नेहा, दीज आर आई थिंक 2099 बैच, नो 99, इमेजिन, सो स्वीट। सो हम सब और थर्सडे हम पहुंचते थे, फ्राइडे सैटरडे लंच के बाद वापस चले आओ। तो थर्सडे एक आध प्रेजेंटेशन, फ्राइडे हेक्टिक डे, सुबह 8:30 से 5:30 बजे तक सारे प्रेजेंटेशंस होंगे। एंड देन फ्राइडे की रात हम सब विला लॉक करके ऊपर टेरेस में बैठेंगे। बहुत सारे किस्से, कहानियाँ, घोस्ट स्टोरीज और पता नहीं क्या क्या हम बैठे हुए थे। आई स्टिल रिमेंबर दिस बॉयज नेम ग्लेन. Glenn suddenly told me, "Ma'am, I'm thinking I'll get married very soon and I'll have babies fast." अब ये वो ज़माना था 10-12 साल पहले, people used to believe कि बच्चे पैदा करने के लिए शादी होनी चाहिए. So, jokes apart. And I was wondering, I said, why, what happened? So, जो अभी इसलिए ये किस्सा मुझे याद आया, ख्याति ने ये कहा कि मैं 10-12 साल पहले और पढ़ाऊँ और उसकी बेटी को पढ़ा सकूँ। ग्लेन ने ये कहा कि इसलिए मैम आई वांट टू गेट मैरिड फास्ट एंड हैव बेबीज सो दैट वन डे माय किड्स विल सिट विद यू लाइक दिस एंड यू विल बी टीचिंग माय चिल्ड्रन एंड यू विल बी ग्रूमिंग देम। आई वाज सो टच्ड। मुझे इतना कुछ दिया है मेरे स्टूडेंट्स ने, हर जगह पर, हर मौके पर। यानी कि मैंने भी जितना विश्वास सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज ने, यहाँ के प्रिंसिपल्स ने, जेजुइट्स ने मुझ पर किया, मैंने कोशिश की उस पर खरे उतरने की। कितने इतिहास रचे हैं। आई रिमेंबर इट वाज 1985 में पिताजी भी यहाँ पर थे। कॉलेज डे फर्स्ट क्वाड्रेंगल में हुआ करता था शाम को। एंड आई हैड मैंने गाना तैयार करवाया था। अराउंड 21 स्टाफ मेंबर्स, कुछ जेजुइट्स भी उसमें थे। फादर टेरी, यू वर देयर इफ़ यू रिमेंबर, फादर वेलिंकर वाज देयर, फादर साइमन वाज देयर, सो मेनी ऑफ जेजुइट्स। एंड हमने एक गाना मैंने तैयार कराया था, द प्यारी जन्मभूमि मेरी प्यारी जन्मभूमि। तौफिक वॉज प्लेइंग तबला विद अस, शंकर हारमोनियम बजा रहा था। वो सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज के इतिहास में पहली बार स्टाफ मेंबर्स ने कोई हिंदी गाना, स्टाफ मेंबर्स पहली बार ग्रुप में स्टेज पर आए थे। उसके बाद एक बार मैंने एक गरबा कोरियोग्राफ करवाया था। अब तो उनमें से
वाह, गुलशन यू आर देयर, गुलशन वॉज देयर। हमने गरबा यहाँ पर प्रेजेंट किया था, फिर यहाँ एक बार स्टेज पर, उस बार तो कोरियोग्राफर को हमने बुलाया था। 2 स्किट्स लिखे मैंने, इंग्लिश भाषा हुआ करती थी, और सॉरी नहीं, सेकेंड टाइम जब हमने किया था, प्रोफेसर नकवी वॉज देयर, प्रोफेसर बोम्बल वॉज देयर, फादर साइमन चावला, कितने सारे लोगों, इतना बढ़िया। तो यानी ऐसा पहले कभी जेवियर्स के स्टेज पर ये हुआ नहीं करता था। तो हाँ, ये इस तरह के काम भी किए और उसमें बहुत आनंद भी आया है। त्रिधारा की बात की मनाली ने, इट वॉज वी क्रिएटेड अ हिस्ट्री, हमने एक इतिहास रचा भारतीय शास्त्रीय संगीत के जगत में। मेरा एक सपना था, एंड व्हेन आई वेंट टू फादर फ्रेजर saying, Father, this is what I want to do this year for our Gen Fest, but our budget will be very high because this combination, इससे पहले पंडित बिरजू महाराज जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, कौशिकी, तीनों के अपने अपने साजिंदे, कभी कहीं भी दुनिया में ये हुआ नहीं था। ये मेरा सपना था कि ऐसा कुछ किया जाए स्टेज पर। फादर सेड, यस, गो अहेड, विल सी व्हाट हैपन्स फॉर आवर बजट, आई विल रिक्वेस्ट आवर स्पॉन्सर्स। और हमने वो किया। ख्याति वॉज ऑल्सो देयर इन द कमेटी। पूरा क्वाड्रेंगल 1200 की कैपेसिटी और मोर देन 1500 पीपल वर देयर। ऑन फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर हमने गैलरीज बनाई थी। I was sitting in green room with Pandit ji, and students came and they said, ma'am, still more than 200 people are standing outside. They want to enter. We don't have place. I said, with folding hands, just say sorry to them. And Hari ji said, नहीं नहीं आशा जी, क्यों आप मना कर रही हैं? बुलाइए सबको अंदर, बैठेंगे ना। I remember सारे आइल्स भरे हुए, सब जगह लोग बैठे हुए, एंड दिस इज Xavierites, दिस इज Xavier's culture. All my ex-students, no matter where they were sitting, लोगों को, बुजुर्गों को खड़ा देखकर अपने आप खड़े होते चले गए, लोगों को बैठने की जगह दी. All my committee members were sitting on the ground right in front. I remember Maharaj ji when he was Samparda, वो लगा रहे थे, and all my students looking at me. We had tears rolling our cheeks, and we created a history that day. I'm so thankful to St. Xavier's College for allowing me इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए. हिंदी साहित्य संगीत नाट्य अकेडमी को लेकर कितना कुछ किया है. पिछले 15 सालों से हम पूरा हफ्ता सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज हिंदी में बन जाता है. हमने यानी कवि सम्मेलन जहाँ स्टूडेंट्स अपनी कविताएं खुद पढ़ रहे हैं, नाटक जो खुद इन स्टूडेंट्स ने लिखे हैं, कितनी कितनी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हम करते रहे हैं. सो पढ़ाना मेरे लिए कहा जाए तो मेरे लिए नशा है, जुनून है, मेरी ज़िंदगी है. क्लासरूम फॉर मी, आई ऑलवेज से एवरी लेक्चर इज़ वन परफॉर्मेंस. सो इन 35 लॉन्ग ईयर्स never ever it happened कि मैं बग़ैर अपना लेक्चर प्लान किए क्लासरूम मैंने एंटर किया हो. I know what I have to teach, and while going out after every lecture, अगर किसी ने मेरे लेक्चर के दौरान बीच में बात कर ली, सो वो जो बेचैनी, वो जो, and I try to figure out कहाँ पर मुझ में क्या कमी रह गई. That particular student was not paying attention. Whenever go to class, I always tell my students that कुछ ना करें मेरे लेक्चर में जब बैठें, they must learn to float. फ्लोट करें, मैं बताऊंगी किस दिशा में जाना है, मेरे साथ चलें. तैरने की कोशिश ना करें, मेरे साथ फ्लोट करें. और मैंने इस चीज़ को महसूस किया है. कितनी बार जब क्लास में व्याकरण पढ़ाया जा रहा है, लिंग वचन, my favorite example my students will remember. I tell them, हिंदी में बहुत सारे नियम कानून हैं जो कि मुंबई की हिंदी पर लागू नहीं होते, है ना. सो मैं एक महिला हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ मैं जाता है ना. दिव्या महिला है, पर मैं उनसे कहूँगी तू जाता है. और जब प्लूरल भी है, अपन सब जाता है ना.
सो मैं जाता है, तू जाता है, अपन सब जाता है, खाली पीली काय को बम मारता है. Now tell me, where is Hindi in this? Where is Hindi is this? पर नहीं जी, हम मुंबई कर तो बोलते हैं और हिंदी को समझते भी हैं. जिस तरह आप इस समय जो रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया, ठीक वही हर बार लेक्चर में मिलना. यू फील सो गुड, यू फील यही जगह है मेरी. पढ़ाने की जब बात करूँ, कितनी बार ये होता है, आई ऑलवेज से दिस दैट आई हियर माई सेल्फ ऑन माई स्टूडेंट्स फेसेस. मैं सुनती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जो कुछ मैं कह रही हूँ उनके चेहरे पर. मुझे याद है 110, 120 स्टूडेंट्स सिटिंग इन द कंपलसरी हिंदी के क्लास में बैठे हुए हैं. एंड व्हेन आई से कि कवि क्या है, कविता क्या है, एंड सेइंग वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उतर कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान. एंड लाइक यू नो, कुछ पलों का सन्नाटा क्लासरूम में. फिर अचानक कोई कहे, मैम जस्ट रिपीट इट ना, आई वांट टू राइट इट डाउन. क्लासरूम से आप बाहर आने लगे, कोई कहे, मैम जस्ट रिपीट दोज लाइन्स ना, आई वांट टू राइट डाउन. मुझे याद है रूम नंबर 41 में मेरा लेक्चर था, 12:10 to 1. आई वॉज गिविंग देम सम एग्जाम्पल. और मैंने कहा, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे. एंड उसमें उस छंद की आखिरी पंक्ति में है, निश्चल प्रेम कथा कहते हो तज कोलाहल की अवनीरे. सच जानिए, चारों दरवाजे नेक्स्ट लेक्चर वाले स्टूडेंट्स आकर खड़े थे, खिड़कियों पर खड़े थे, पर मैं और मेरे स्टूडेंट्स उस नाव पे सवार पता नहीं कहाँ दूर समुद्र में जा रहे थे. फेल्ट सो गुड. सचमुच तज कोलाहल की अवनीरे, इस धरती के शोर और गुल से दूर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जा रही थी. ऐसे कितने किस्से हैं. लाइक एक बार मैं जितनी बार मैंने क्लासरूम में ईदगाह कहानी पढ़ाई है, एंड ईदगाह कहानी के आखिर में जब दादी अमीना अपना आंचल फैला कर अल्लाह ताला से, खुदा से अपने पोते हामिद के लिए दुआ मांग रही है, मैं हर बार सोचती हूँ कि ये बहुत गलत है. मेरा आई शुडंट गेट चोक्ड, लाइक इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए एक प्रोफेसर को क्लास में. कोशिश बहुत करती थी, पर फिर वही हार जाती हूँ अपने आप से. माई थ्रोट यूज्ड टू गेट चोक्ड. आपको ईमानदारी से बता रही हूँ कि कितनी बार मैंने देखा है, नॉट ओनली गर्ल्स बट इवन दोज बॉयज सिटिंग इन माई क्लास, वो झिलमिल एक तारा आँख के कोने में जब चमकता है आंसू का, मुझे लगता है मैं क्या दे दूँ इन बच्चों को. सो मैंने इस हिंदी साहित्य को बार बार बरसों तक अपने स्टूडेंट्स के साथ जिया है. मुझे याद है कंपलसरी के क्लास में शायद ही मेरा कोई ऐसा बैच होगा जिन्हें मैंने मधुशाला नहीं सुनाई होगी. मधुशाला सुनाना, और कुछ डेफिनेटली वैसे वाले भी होते हैं. 110 की क्लास में 8, 10, 12 तो ऐसे निकल ही आएंगे जब आप बड़े उत्साह से जा रहे हैं, व्हाई इज शी सेइंग दिस इन द क्लास, है ना. सो ठीक है, मैं कह देती हूँ मैंने तुम्हें नहीं देखा, है ना. सो मुझे मज़ा आता है जो मेरे साथ हैं. और उस मधुशाला को इनकी क्लास में पढ़ना, मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला, या दिन को होली रात दिवाली रोज़ मनाती मधुशाला. मैं जब पढ़ रही होती थी क्लास में, मेरे स्टूडेंट्स बच्चन जिनकी उन शब्दों को पी रहे होते थे और उनको देखकर नशा मुझे हो रहा होता था. आई यूज्ड टू फील सो ग्रेट कि ये पीढ़ी भी, चौथी पीढ़ी सुन रही है उन्हें, समझ रही है उन्हें. इन चीज़ों का आनंद ही अलग है. और अच्छा ये लगता है कि इन स्टूडेंट्स ने जैसे क्लास में मैं पार्टीशन की बात कर रही हूँ, आई थिंक क्यूरो नहीं आई हुई है, पार्टीशन की बात हम क्लास में कर रहे थे. और 2 दिन के बाद क्यूरो मेरे पास आई, मैम आई वांट टू राइट वन प्ले फॉर अंतस ऑन पार्टीशन. आई सेड यस गो अहेड. इतना बढ़िया नाटक उस लड़की ने लिखा विभाजन, भारत के विभाजन को लेकर. हमने वो अपने अंतस महोत्सव में उसे स्टेज किया था. सिलेबस में नहीं है, पर मैं इन लोगों को सुना रही हूँ. रश्मि रथी, 1 बजे लेक्चर ख़त्म हो जाता है, बेल भी हो गई, 1:30 बज गए, 1:45 बज गए, 2 बज गए, और हम सब बैठ के रश्मि रथी सुन रहे हैं. अंधा युग सिलेबस में नहीं है, पढ़ रही हूँ मैं इन लोगों के लिए. और शिवानी कहती है, मैम लेट्स डू
अंधा योग नेक्स्ट ईयर आई विल डायरेक्ट इट। मैंने कहा ठीक। और लास्ट ईयर शिवानी ने अंधा योग का एक हिस्सा हमने स्टेज भी किया। मैं बात कर रही हूँ किस तरह से आजकल बच्चों पर कितना प्रेशर होता है पेरेंट्स का, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, इस तरह की बातें होती हैं। और विशेषिका मेरे पास आती है, मैम आई वांट टू राइट समथिंग। हम दोनों डिस्कस करते हैं और एक प्यारा सा नाटक वो लिखती है जहाँ पर वो बताती है कि आजकल किस तरह से कोयल से कहा जा रहा है नाचो और मोर से कहा जा रहा है गाओ। सो यू नो, ये चीज़ें इन बच्चों तक पहुँच पाना, इसलिए कहती हूँ कि और क्लासरूम में कितने डिस्कशंस, तर्क वितर्क कुतर्क सब होते हैं, बट बावजूद इसके मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। मुझे हमेशा लगता है कि बोलें और ये मेरे साथ अगर कुछ बांटना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं तो ज़रूर किया जाए। तो मैंने अपने इन स्टूडेंट्स के साथ भरपूर जिया है, बहुत 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 सुख पाया है, कोशिश की है देने की। क्लासरूम में वो मुस्कुराहटें, वो आँखों की चमक, वो उदासियाँ, कभी कभी वो कसमसाहट, मोचीराम पढ़ के सुना रही हूँ, संसद से सड़क तक सुना रही हूँ, अनामिका की कविता, स्त्रियाँ या फुटबॉल हॉकी खेलती लड़कियाँ सुना रही हूँ, और वो कसमसाहट इन स्टूडेंट्स के अंदर देखना, महसूस करना, लगता है ये चीज़ें ज़िंदा रहें इनमें। सो बहुत बहुत आभारी हूँ इस प्यारे सफ़र की, इस प्यारी एक यात्रा की जो मैंने सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में निभाई है। बहुत कुछ पाया है, गदगद हूँ, अभिभूत हूँ, आकंठ प्रेम में डूबी हूँ। गर्व से इस बात को कह सकती हूँ कि सन 49-50 में डॉक्टर शशि शेखर नैथानी ने इस सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में जिस हिंदी विभाग की शुरुआत की थी, हिंदी साहित्य मंडल को लेकर जिस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ की शुरुआत की थी, मैंने कोशिश की है कि उन चीज़ों को निभा सकूं। कबीर का एक पद है, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, काहे का ताना काहे का बाना, कौन तार से बीनी चदरिया। उसमें आखिरी पंक्ति में वो कहते हैं, दास कबीरा जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। मैं बड़े गर्व और संतोष के साथ ये बात कह सकती हूँ कि डॉक्टर नैथानी ने सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में हिंदी विभाग की जो स्थापना की, सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज के ट्रेडिशन, परंपराओं को जिस तरह से निभाया, जिस चादर को, सफ़ेद शफाक चादर को पिताजी छोड़कर गए, मैंने भी कोशिश की है। और आज जब वो चादर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे पूरा विश्वास है इस पर कहीं कोई दाग धब्बा छींटा कुछ नहीं है। मैंने कोशिश की है ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। पिताजी की उस परंपरा को, सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज की परंपरा को मैंने भी निभाने की कोशिश की है। जा रही हूँ तो सिर्फ इसलिए कि जो आया है उससे जाना होता है। जाना एक रिवाज है, एक रिवाज है, जाना होता है। तो मैं भी जा रही हूँ, पर ये जाना जाना नहीं होगा। कल सुबह फिर जब सूरज उगेगा, चैपल की इन खिड़कियों पर, उन सतरंगी कांचों पर वो जब रोशनी पड़ेगी, उन सतरंगी रंगों में मैं होंगी। ठंडी बयार जब शाम को चलेगी, उस बयार में मैं होंगी। फिर जब पानी बरसेगा, ये कंगूरे, ये दीवारें भीगेंगी, उनमें मैं होंगी। मैं यहाँ से जा ही नहीं सकती क्योंकि ये कॉलेज मेरे रग रग में बसा है और इस कॉलेज की रग रग में मैं बसी हुई हूँ। मैं जानती हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंगल की कौन सी टाइल ज़रा ढीली हो गई है और वहाँ पर मिट्टी दिखने लगी है। मैं जानती हूँ कि स्टाफ रूम में कौन लोग हैं जो स्विच ऑफ लाइट और पंखे बंद करके नहीं जानते। मैं जानती हूँ जो दोनों लिफ्ट जो हैं, आप जब बटन दबाते हैं कितने सेकंड्स के बाद इठलाती ठुमकती वो चलना शुरू होती हैं। मैं जानती हूँ किस क्लासरूम का कौन सा पंखा ज़्यादा शोर मचाता है। मैं जानती हूँ किस क्लासरूम की कौन सी खिड़की का स्टॉपर अब खिड़की को रोक नहीं पाता है। मैं जानती हूँ किस क्लासरूम के कौन से पर्दे अब फटने लगे हैं। मैं जानती हूँ कि मैं टेबल पर बैठकर पढ़ाती हूँ तो कौन सा टेबल अब ज़्यादा हिलने लगा है और कब मैं धराशाही हो जाऊँगी। मैं जानती हूँ स्टाफ रूम के कौन से वॉशरूम की चटखनी ज़्यादा ज़ोर से लगानी पड़ती है। रग रग को जाना है, पहचाना है,
यहाँ बहुत खूबसूरत ज़िंदगी जिए। आखिर में यही कहना है, मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी ना सकूँ। सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज, सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज जब कभी बुलाएगा ज़रूर आऊँगी। आप सबको धन्यवाद, अंतरात्मा से धन्यवाद, धन्यवाद।